Hello, dear students. How are you? In last lecture, we have discussed about the algebra of vectors. In that, addition of two vectors, triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, then subtraction of two vectors and position vector of a point in a space. Now, today we are going to study one important concept about the vectors. This is one of the important theorem from vectors. Two vectors, A vector and B vector, are collinear if and only if there exist scalars m and n, at least one of them is non-zero, such that m into A vector plus n into B vector is equal to 0. Now, first of all, understand the meaning of this theorem carefully and remember it as a concept, important concept. Now look at this. टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, यानी दो वेक्टर कोलिनियर है इफ एंड ओनली इफ. जब इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट आता है थ्योरम में तो आपको इसको इफ देन एंड कन्वर्सली दोनों टाइप से आपको प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि हमने लॉजिक में भी ये बात सीखी है कि P डबल इंप्लाइज Q. इसका मतलब होता है P इंप्लाइज इफ P देन Q एंड इफ Q देन P. They both we want to prove here. Now, what is the hypothesis of this theorem? That at least one of them, m and n, is non-zero such that m into a plus n into b is equal to 0. यानी linear combination of these two vectors must be equal to 0 if that vectors are collinear. Means if vectors are collinear, then their linear combination is 0, and if linear combination is 0, then that vectors must be collinear. यानी हमें दो स्टेटमेंट, तो हम एक एक पार्ट प्रूव करते हैं. जैसे पहले ओनली इफ का पार्ट अगर प्रूव करना है तो प्रूफ में पहले कंसीडर करेंगे अपन इफ लेट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी कोलिनियर. पहले क्या कंसीडर किया कि सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर. अब दो वेक्टर कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर वी कैन से दैट A vector can be written as some constant lambda into B vector, where we can say that lambda is a scalar. क्योंकि हमें पता है if two vectors are collinear, then one vector can be expressed as a scalar multiple of another vector. तो इसलिए हमने A vector is equal to lambda into B vector लिखा. तो that can be written as therefore A vector माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं लेट यहाँ ए वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है 1, इसको हम m कहेंगे और माइनस लैम्डा को हम n कहेंगे इज इक्वल टू n. देयरफॉर वी हैव m इंटू ए वेक्टर माइनस n इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. यानी हमने ये प्रूव किया कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन देयर लिनियर कॉम्बिनेशन इज प्लस their linear combination is 0, always 0. Second one, इसका conversely part आपको prove करना है. Conversely, let m into a vector plus n into b vector is equal to 0. ये consider करते समय हमें यहाँ पे दिया है कि at least one of them is non-zero, तो हम ये दोनों में से एक को non-zero consider करेंगे such that m is not equal to 0 कंसिडर करेंगे कि m की वैल्यू 0 नहीं है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? therefore it can be written as m into a vector is equal to minus n into b vector, और m को इधर शिफ्ट कीजिए तो a vector is equal to आएगा minus n upon m into b vector. now if you consider minus n by m as lambda, हम कंसिडर करेंगे another letter कोई भी. suppose therefore we can say that a vector is equal to some constant t into b vector, where we can say that t is nothing but equal to minus n by m is a scalar. ये स्केलर है ऐसे कंसीडर. तो यहां पे ये स्टेटमेंट में क्या मिलता है कि a vector is a scalar multiple of, therefore we can say that a vector is a scalar multiple of b vector, scalar multiple of b vector. Therefore, we can say that a vector and b vector are collinear.
क्योंकि हमें पता है जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है तो दैट टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पे आपकी ये प्रूफ खत्म होती है, जिसमें हमने प्रूव किया है दो चीजें। इफ two vectors are collinear then their linear combination is zero, and if the linear combination of two vectors is zero then that two vectors are always collinear vectors। समझ में आ रहा है? अब इसमें एक करोलरी है कि if, यहां पे दिया है कि if two vectors a vector and b vector are collinear, हम लिखते हैं यहां पे करोलरी फर्स्ट में कि if a vector and b vector are two non-collinear vectors such that m into a vector plus n into b vector is equal to 0, then m and n must be equal to 0। ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद रखो कि if a vector and b vector are two non-collinear vectors, ऐसे दो non-collinear vectors हैं such that m into a vector plus n into b vector is equal to 0। हमें इस थ्योरम में कहा है कि अगर लिनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर का जीरो है, दो वेक्टर का लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो उन दो वेक्टर्स को डेफिनेटली क्या बनना पड़ेगा? कोलिनियर। लेकिन यहां पे नॉन कोलिनियर होते समय अगर उनका लिनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि m और n दोनों भी जीरो है। और यहां पे नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स ऐसे लिखेंगे, नॉन कोलिनियर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर ये जीरो वेक्टर भी नहीं है। इस सिचुएशन में हमें ऐसा पता चलता है कि m और n दोनों की वैल्यू जीरो होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इसकी करोलरी नंबर सेकंड देखेंगे हम। करोलरी नंबर सेकंड में लिखा है if two vectors a vector and b vector are non collinear such that, second, if two vectors a vector and b vector are non-collinear such that m into a vector plus n into b vector is equal to some constant p into a vector plus some constant q into b vector, then obviously we can compare both the sides, then we can write m is equal to p and n is equal to q। ये दोनों करोलरीज आपको याद रखनी है। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ये अगर नॉन कोलिनियर है सच दैट लिनियर कॉम्बिनेशन दो ए वेक्टर और बी वेक्टर के दो लिनियर कॉम्बिनेशन अगर सेम है तो डायरेक्ट हम ए वेक्टर का कोएफिशिएंट ए वेक्टर के कोएफिशिएंट से और बी वेक्टर का कोएफिशिएंट बी वेक्टर के कोएफिशिएंट से हम कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली m इज इक्वल टू p और n इज इक्वल टू q हम ऐसा लिख सकते हैं। ये तीन कंसेप्ट जो है, एक थ्योरम का कंसेप्ट और ये दो करोलरी की कंसेप्ट, दोनों भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। Now look at for second theorem. It is theorem called as linear combination of two vectors. First of all, we'll understand the statement of the theorem. Let a vector and b vector be non-collinear vectors. A vector r vector is coplanar with a vector and b vector if and only if there exist unique scalars t1 and t2 such that r vector is equal to t1 into a vector plus t2 into b vector। यानी हमें यहां पे तीन चीजें, ये भी स्टेटमेंट इफ एंड ओनली इफ का स्टेटमेंट है, यानी इसमें हमें दो चीजें तो कंफर्म प्रूव करना है और एक वर्ड यहां पे जो आया है यूनिक, इसलिए हमें आपको तीसरी चीज में इसमें कंफर्म करनी है। यानी पहले हमें प्रूव करना है कि अगर आर वेक्टर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ कोप्लेनर है
तो R vector can be written as a linear combination of A vector and B vector. उनको इस तरह से हम लिख सकते हैं T1 इंटू A वेक्टर प्लस T2 इंटू B वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरी चीज, अगर R वेक्टर को T1 इंटू A वेक्टर प्लस T2 इंटू B वेक्टर ऐसा लिखते हैं तो R वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोप्लेनर। ये हमें इफ के पार्ट में प्रूव करना है, ठीक है। यानी स्टेटमेंट और इसका कन्वर्स, यानी दोनों स्टेटमेंट हमें पहले प्रूव करने पड़ेगी। और तीसरी चीज हमें कि T1 एंड T2 आर यूनिक, यानी T1 और T2 के जैसे दूसरे कोई स्केलर नहीं हो सकते जिसको R वेक्टर को T1A प्लस T2B ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा दूसरे स्केलर्स नहीं हो सकते। ये एक प्रूव करना है, यानी T1 एंड T2 आर यूनिक, यानी उसका यूनिकनेस प्रूव करना है। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से एक बात देखिए कि हमें इसमें पहली चीज प्रूव करना है कि अगर R वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर कोप्लेनर है तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज T1 into A वेक्टर प्लस T2 into B वेक्टर वेयर T1 and T2 आर स्केलर्स। दूसरी चीज प्रूव करनी है, अगर R वेक्टर इज इक्वल टू T1 into A वेक्टर प्लस T2 into B वेक्टर है तो R वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर ये कोप्लेनर है। और तीसरी चीज प्रूव करनी है कि T1 T2 आर यूनिक। तो चलो एक एक चीज देखते हैं हम। पहले हमें A वेक्टर एंड B वेक्टर आर गिवन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यानी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। कहीं पर भी एक प्लेन में लेंगे क्योंकि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक लेता हूं A वेक्टर, ये सपोज A वेक्टर है, और यहां लेता हूं मैं B वेक्टर, सपोज दिस इज अ B वेक्टर। अब बताया है कि R वेक्टर इज कोप्लेनर विथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। इन्हीं के प्लेन में एक R वेक्टर लेता हूं मैं, सपोज दिस इज R वेक्टर, ये R वेक्टर है, सपोज OP वेक्टर इज R वेक्टर, ऐसा मैंने कंसीडर किया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे R vector can be expressed as a linear combination of these two vectors। इसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो O पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट ऑफ R वेक्टर है, इसको मैं यहां पे A वेक्टर को पैरेलल, O में से A वेक्टर को पैरेलल एक लाइन निकाल, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू A वेक्टर। समझ में आ रहा है आपको? और इस O पॉइंट में से ही मैं इस B वेक्टर को एक पैरेलल लाइन निकालता हूं, सपोज दिस इज लाइन पैरेलल टू B वेक्टर, B वेक्टर को पैरेलल लाइन निकाले। अब इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट में से मैं B वेक्टर को एक और A वेक्टर को एक, दोनों को पैरेलल लाइंस निकालता हूं। इसको मैं R वेक्टर लिखूंगा, यहां पर R वेक्टर है ये। अब P में से A को एक पैरेलल लाइन निकाली, यानी इसको भी पैरेलल होगी, और यहां से B को एक पैरेलल लाइन निकाली, समझ में आ रहा है? तो यहां पॉइंट बन गया M और ये पॉइंट बन गया N, मैंने नाम दिए इनको। तो यहां पे जो फॉर्म होने वाला क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल OMPN इज नथिंग बट अ पैरेललोग्राम। क्या किया है हमने, ठीक से याद रखिए। हमें पहला पार्ट प्रूव करना है। Here first of all we are going to prove if A vector, B vector, R vector are coplanar, then we have to prove R vector is equal to T1 into A vector plus T2 into B vector where T1 and T2 are scalars। ये प्रूव करना है हमें, ये पहला स्टेटमेंट है आपका। तो इसके प्रूफ में हम लिखेंगे कि लेट A vector and B vector be any two non-collinear vectors
कोई भी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स लिए, ठीक है, एंड आर वेक्टर is coplanar with A vector and B vector. Now draw, क्या किया हमने आगे, draw, इसको हमने OP वेक्टर लिखा था तो इसलिए OP वेक्टर मैं लिखता हूं. draw lines parallel to A vector and B vector from initial point O and terminal point P and form quadrilateral OMPM. समझ में आ रहा है आपको? क्या किया हमने, ठीक से याद रखिए, जो प्रोसेस हमने फिगर में निकाली थी वही प्रोसेस हमें लिखनी है पूरी स्टेटमेंट्स में. पहले हमने जो लिखा, जो हमें प्रूव करना का है, पहले स्टेटमेंट में हमें प्रूव करना है कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर आर कोप्लेनर, देन आर वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये करने के लिए हमने दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कंसीडर किए. देखो, ए वेक्टर यहां पे और बी वेक्टर यहां पे, और आर वेक्टर इज कोप्लेनर विद ए वेक्टर, ये अपने गिवन पार्ट में है. तो आर वेक्टर निकाला और आर वेक्टर के जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है इसमें ए और बी को पैरेलल लाइंस निकाले तो हमें मिल गया एक क्वाड्रिलैटरल. तो वो क्वाड्रिलैटरल कैसा होता है, therefore we can say that quadrilateral OMPN is a parallelogram. अब ये अगर पैरेललोग्राम है तो यहां पे एक चीज हमें सीधी सीधी नजर आती है कि OM is parallel to A vector. OM vector is collinear with or is parallel to A vector. And ON vector is parallel to B vector. ON ये B वेक्टर को पैरेलल है और OM ये A वेक्टर को पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो हम therefore लिख सकते हैं OM वेक्टर is nothing but some constant T1 into A vector and ON vector is nothing but some constant T2 into B vector, where we can say that where T1 and T2 are स्केलर्स. ये स्केलर्स है. समझ में आ रहा है आपको? अब इन क्वाड्रिलैटरल, इन पैरेललोग्राम, वी कैन से दैट इन पैरेललोग्राम OMPN, using parallelogram law, OP vector can be written as OM vector plus ON vector. Using parallelogram law of vector addition, OP vector can be written as OM plus ON. इसको लिखा हमने T1 into A vector और ये T2 into B vector, ON vector. तो OP vector यानी क्या है, R vector है. तो ये R vector is equal to आया T1 into A vector plus T2 into B vector. यानी अपना पहला स्टेटमेंट यहां पे प्रूव हो गया कि if A vector, B vector, R vector are coplanar, then we have to show that, or we have to prove that R vector is equal to T1 into A vector plus T2 into B vector. Conversely, we have to prove that, if R vector is equal to T1 into A vector plus T2 into B vector, then R vector, A vector, B vector are collinear.
सॉरी कोप्लेनर। समझ में आ रहा है आपको? अब ये प्रूव करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट, इसमें प्रूफ, देयरफॉर वी नो दैट A vector and B vector are always coplanar। क्योंकि हमें पता है कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं, कोई भी दो हो लो, that are always coplanar। therefore we can say that अगर ये दो वेक्टर कोप्लेनर है, therefore T1 into A vector and T2 into B vector are always coplanar। अगर दो वेक्टर कोप्लेनर है तो इनको जो पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि T1 इंटू ए वेक्टर को पैरेलल होगा और T2 इंटू बी वेक्टर को पैरेलल होगा, तो उन दोनों को भी कैसा होना है? कोप्लेनर होना है। स्टेटमेंट को कनेक्ट कीजिए एक दूसरे से। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर, देन T1 इंटू ए वेक्टर एंड T2 इंटू बी वेक्टर आर आल्सो ऑलवेज कोप्लेनर। और अब एक स्टेटमेंट जो मैंने एक आपने नोट्स में भी लिखी हुई है कि if a vector and b vector are coplanar, then a plus b and a minus b are also coplanar with that a vector and b vector। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि therefore t1 into a vector plus t2 into b vector is coplanar with t1 a vector and T2b vector, that is with a vector and b vector। therefore we can say that अगर T1 into a vector and T2 into b vector is coplanar with, they are coplanar with T1 a vector plus T2 b vector, यानी इसको हम a vector and b vector भी कह सकते हैं, और this vector is nothing but r vector। therefore we can say that r vector is equal to r vector, a vector, b vector are कोप्लेनर, यानी ये हमेशा कोप्लेनर है। समझ में आ रहा है? यहां पर तीन चीजें याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, दो वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनके स्केलर मल्टीपल्स हमेशा कोप्लेनर ही रहेंगे, और कोई भी दो वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमेशा वो दो वेक्टर्स के साथ कैसी रहती है? कोप्लेनर रहती है। और ये एडिशन ही है, उसको हमने आर वेक्टर लिखा है, इसलिए दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ये हो गया आपका कन्वर्सली पार्ट प्रूफ। अब हमें प्रूव करना है यूनिकनेस। नाउ आर वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर यूनिकनेस ऐसे लिखेंगे, R vector is equal to T1 into A vector plus T2 into B vector। इसको लिखेंगे फर्स्ट। सपोज R vector can be written as R vector is equal to some constant S1 into A vector plus S2 into B vector, where S1 and S2 are scalars, where S1 and S2 are scalars। देखिए क्या किया है हमने, R वेक्टर इज T1 इंटू ए वेक्टर प्लस T2 इंटू बी वेक्टर, ये तो हमने प्रूव किया है। सपोज अगर वो यूनिक नहीं है, क्योंकि यूनिकनेस के लिए जाना है हमें, तो इसको थोड़ा सा हम इनडायरेक्ट प्रूफ से जाते हैं कि कंसीडर करेंगे कि आर वेक्टर को फिर एक दूसरे दो स्केलर्स है S1 इंटू ए वेक्टर प्लस S2 इंटू बी वेक्टर में लिख सकते हैं। अगर हमने फर्स्ट और सेकंड की सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, व्हाट विल यू गेट? सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट में से, तो हमें मिलेगा देयरफॉर
ये r माइनस आर तो जीरो हो जाएगा, ये दो जीरो हो जाएंगे। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो मिलेगा t1 माइनस s1 इंटू ए वेक्टर प्लस t2 माइनस s2 इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। और अब हमें पता है कि बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये हमें तो स्टेटमेंट में दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर। फिर भी उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा आया, जीरो आया। तो करोलरी वन में क्या देखा था हमने, थ्योरम वन की करोलरी वन में, कि इफ two vectors are non-collinear and then also their linear combination is zero, therefore we can say that, therefore यहां पे लिखता हूं मैं, therefore t1 minus s1 nothing but zero and t2 minus s2 is nothing but zero, and it implies that t1 is nothing but equal to s1 and t2 is nothing but equal to s2, and therefore we can say that t1 and t2 are unique, यानी they are the unique scalars, ये unique scalars है। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ो, समझ लो। इसमें तीन पार्ट हमने प्रूव किए हैं। अगर आर वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोप्लेनर है तो आर वेक्टर कैन बी रिटन एज लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर if r vector is equal to t1 into a vector plus t2 into b vector, then r vector a vector b vector are coplanar। और ये एज अ कंसेप्ट भी आपको याद रखने हैं while solving the examples। कहीं पर भी आपको एक वेक्टर दूसरे दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिख गया तो हम कह सकते हैं कि दैट थ्री वेक्टर्स आर डेफिनेटली कोप्लेनर वेक्टर्स। यानी कभी भी एग्जांपल्स में आपको अगर ऐसा मिलता है कि c वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो definitely what can we say about ABC? We can say that A vector, B vector and C vector are coplanar vectors। ठीक है, तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और थर्ड इसमें हमने प्रूव किया है कि T1 and T2 are always unique scalar, means any vector in a plane can be written in the linear combination of another two vectors in the same plane, ठीक है, यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, यानी वो जो स्केलार्स हम उसके लिए यूज करेंगे वो कैसे है, यूनिक है। समझ में आया? तो ये थ्योरम की प्रूफ आप एक बार टेक्स्ट बुक में से भी पढ़िए, अपने जो नोट्स दिए हैं उसमें से भी पढ़िए और खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको खुद प्रूव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम व्हिच कैन बी आस्क्ड फॉर बोर्ड एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के लिए या 4 मार्क्स के लिए आपको ये थ्योरम पूछा जा सकता है। बोर्ड में अब तक बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आपको अच्छे से प्रूफ तैयार करना है। ठीक है, तो चलिए आप करिए, मैं अपने इस पे अभी आगे के थ्योरम लेने हैं। नाउ लुक एट फॉर थ्योरम नंबर 3। 2 थ्योरम सीखे हमने, 2 करोलरी सीखे हैं, अब तीसरा थ्योरम। If three vectors A vector, B vector, C vector are coplanar, if and only if there exists a non-zero linear combination x into A vector plus y into B vector plus z into C vector is equal to 0, with x, y, z are not all zero at a time। एक आधा जीरो हो सकता है, यानी तीनों जीरो नहीं है ऐसी पोजीशन। यानी इसमें भी इफ एंड ओनली इफ आ गए, यानी यहां पे भी आपको थ्योरम और कन्वर्स दोनों प्रूव करना है, यानी इफ देन और ओनली इफ दोनों के पार्ट आपको प्रूव करने पड़ेंगे। यानी इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर देन दिस लिनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, एंड इफ लिनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो देन दे आर कोप्लेनर। तो पहला हम ओनली इफ का पार्ट प्रूव करते हैं, जिसमें गिवन है इफ A vector, B vector, C vector are coplanar। अगर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर कोप्लेनर है तो इसमें 2 केस अराइज हो सकते हैं। केस नंबर 1 है इफ एनी टू ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोलिनियर। से A वेक्टर एंड B वेक्टर, यानी अगर
ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर है तो इन तीन में से कोई दो वेक्टर कोलिनियर भी हो सकते हैं। अगर वो कोलिनियर, तो हमने लिखा कि सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो इनको कोलिनियर लिया तो क्या होगा, देयरफॉर इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन वी कैन से दैट their linear combination must be equal to 0. Therefore we can say that there exist two scalars x and y such that x into a vector plus y into b vector is equal to 0. यानी ऐसे दो स्केलर्स हो सकते हैं x and y, because a vector and b vector are collinear, so x into a vector plus y into b vector definitely is equal to 0. It can be written as x into a vector plus y into b vector plus 0 into c vector is equal to 0. And now if consider let 0 is equal to z, इस 0 को हम अगर z लिखते हैं तो therefore we have x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is nothing but equal to 0. यानी केस 1 में जब हम any two of these three vectors are collinear लेते हैं तो आपको ये linear combination is equal to 0 मिलता है। वैसे हम इसमें केस 2 लिखेंगे, केस 2 if none of no two, ऐसे लिखेंगे, if no two vectors from a vector b vector and c vector are collinear. केस सेकंड क्या लिया, इफ नो टू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर, यानी इन तीनों में से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। अब इसमें क्या है, as a vector b vector c vector are coplanar, ये तो हमें पता है, अगर ये कोप्लेनर है तो therefore we can say that अगर ये कोप्लेनर है तो इन तीनों में से कोई भी एक वेक्टर अनदर टू वेक्टर्स के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। therefore we can say that this c vector can be written as alpha into a vector plus beta into b vector, where alpha and beta are scalars. तो c वेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे तो therefore alpha into a vector plus beta into b vector minus c vector is equal to 0 आ गया। therefore हम कंसीडर करेंगे let alpha is equal to x, beta is equal to y and minus 1 is equal to z, तो ये बन जाएगा therefore x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0। यानी अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तीनों में से कोई भी दो नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है, तो हम इस तीन वेक्टर्स का लिनियर कॉम्बिनेशन 0 है, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दो जगह पे हमने प्रूव किया कि if a vector b vector or c vector then their non-zero linear combination is always equal to 0. x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0. अब इसका कन्वर्सली पार्ट, अगर इनका linear combination 0 है तो these three vectors are coplanar, a vector b vector c vector are coplanar। तो कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे, कन्वर्सली if x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0, consider that x is not equal to 0 या z is not equal to 0। किसी भी एक को नॉन जीरो कंसिडर करेंगे, x, y और z तीनों में से किसी को एक को नॉन जीरो कंसिडर करना है। अगर z को नॉन जीरो कंसिडर किया है तो therefore this statement can be written as z into c vector is equal to x into a vector plus minus x into a vector minus y into b vector, ऐसा लिख सकते हैं। if x into a vector plus y into b vector plus z into c vector is equal to 0, then z into c vector is minus x into a vector minus y into b vector। अब z को उधर शिफ्ट कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, therefore we have c vector is equal to minus x upon z into a vector
माइनस वाई अपॉन जेड इंटू बी वेक्टर। हम कंसिडर करेंगे लेट माइनस एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू सपोज वन वेक्टर t1 and one scalar t1 and minus y upon z y is equal to t2, then c vector is nothing but equal to t1 into a vector plus t2 into b vector। और हमें पता है कि one vector, if any one vector is a linear combination of another two vectors, then that three vectors are coplanar, therefore we can say that a vector, b vector, c vector are coplanar vectors। यानी यहां पे क्या प्रूव किया हमने कि if three vectors a vector, b vector, c vector are coplanar, then if three vectors a vector, b vector, c vector are coplanar, then there exist non-zero scalars x, y, z such that x into a vector plus y into b vector is equal to 0, and its converse part, if x a plus y b plus z c is equal to 0, then a vector, b vector, c vector must be coplanar vectors। ठीक है, तो ये थ्योरम थर्ड हो गया। इसके आगे हमें इसके दो करोलरीज भी सीखना है, तो ये करोलरीज और ये थ्योरम आगे के थ्योरम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।